তো ইন্ডাইসিসের আজকে কিছু প্রবলেম আমরা করে নিই ঝটপট 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 ঝটপট। সো দি ইন্ডাইসিস, ইন্ডাইসিসে কিছু প্রবলেম যেগুলো আমাদের খুব দরকার, তার আগে একবার আমরা রিক্যাপ করে নিই যে কী কী ইকুয়েশানগুলো আমরা পড়েছিলাম। ইকুয়েশান তো না, কী কী ফর্মুলাগুলো আমরা ইউজ করেছিলাম এগুলো অঙ্কগুলো করার জন্য। সো অ্যাট ফার্স্ট a to the power m into a to the power n, this is known as in Bengali Suchok. Okay, so a to the power m into a to the power n means if the bases are same but the powers are different, then the result is a to the power m plus n. Okay, for example, 5 to the power 2 into 5 to the power 7, it would be 5 to the power 2 plus 7 and 5 to the power 9. Number 2, rule number 1. Rule number 1 clear now? So, if the bases are same, but the powers are different, we can see here bases are same and the powers are different. So if we multiply, then what happened? Same base, you have to write this one and you have to add the powers. So m plus n. Example, 5 square 5 to the power 7, this one. Here you can see ये जो 5 है ना भाई, देखो ये तो implies कर रहा है a को, this is implies a, and the power this one and that one. So here a equal 5, m equal 2 and n equal 7. Okay, so number 1, a to the power m into a to the power n. तुम कुछ भी लिख सकते हो भाई, a to the power m and a to the power नहीं। अगर तुम्हें पूछे थे बोलो भाई p to the power k and p to the power 2 ka, it would be what? p to the power k and p to the power 2 k, it would be p to the power k plus 2 ka, it would be p to the power 3 ka. p to the power 3 k. Okay, now next. So if this one is multiplication form, then we can write like this. Next. If this one is division, the relation between is division, means here written a to the power m divided by a to the power n, then it would be what? It would be a to the power m minus n. Why a to the power m minus n? Means we know another formula कि भाई 1 by a to the power n can be written as a to the power minus n रे बाबा. Okay, so 1 by n can be written as a to the power minus n, and here so this one a to the power m by a to the power m is what? यहाँ से तुम लिखते पारो a to the power m into a to the power minus n using the basically the first rule, same base, powers are different, so m plus minus n, so it would be दिख रहा a to the power m minus n. So those are the basic, those are the structure. Clear ना? याद कर लो. So a to the power m divided by a to the power m means a to the power m divided by a to the power n can be written as a to the power m minus n, a to the power m minus n. कैसे नहीं लिखते भाई? a to the power m minus n रे बाबा. Okay, so this one is done. Second one भाई जो देखो पहले से किताबों पढ़ना,
Okay, now so this one first formula a to the power m plus into a to the power n, bases are same, powers are different, the relation is multiplication product, so power we have to add the power. मीन्स अगर ऐसा रिलेशन है, प्रोडक्ट रिलेशन है जहाँ पे बेसिस आर सेम, तो तब क्या करना चाहिए कि तुम पावर्स को ऐड कर दोगे, है कि नहीं. एंड सेकेंड, अगर वहाँ पे कोई दिस वन इज डिवीजन, देन वी हैव टू सबट्रैक्ट द पावर. अगर डिवीजन लिखा है तो डिवीजन लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कैसे लिखे और ऐसे लिखे, इन दोनों तो सेम ही है. क्लियर. सो इसमें so we can write this one a to the power m minus n, that's all. Third, this one is another one. I know some of you know this one and or don't know. I don't know. Some of you know or not. I don't know. So this one, say a, भाई देखो ध्यान से देखो, a by b होल टू दी पावर माइनस कोनो पावर আছে, माइनस एनी पावर, a by b to the power any power. Clear ना? Power is what? Anything, but this one is minus. Say this one is m. Then how to write this one? So जब देखो ऐसी फॉर्म में है, आंख बंद करके लिखना. आंख बंद करके कैसे लिखोगे भाई, यार बोलना है तो मैं बोल देते हैं. सो b by a, so a by b whole to the power minus m can be written as b by a to the power m. चलो देखिए इसे कैसे करें. so this one from here we can write a to the power, भाई देखो ना पहले रूल तो पता ही था ये रूल कि a to the a by, चलो a को हटा देते हैं, ये लिखते x by y to the power m. तो इसे क्या लिखते हैं भाई, x to the power m and y to divided by y to the power m. चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान के चलो यहाँ पे x by y to the power में लिखा है 2, तो इसे कैसे लिखे, x to the power 2 by y to the power 2. Clear ना? We know this form, x to the x by y whole to the power m, so it would be x to the power m by y to the power m. एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो x by y to the power 2, so it would be can be written as x square by y square. है कि नहीं बोलो भाई. नेक्स्ट जरा, सो मीन सिमिलरली a to the power, सो देखो ठीक से लिखते हैं, a to the power a by b दिख रहा है ना, और to the power minus m, so can be written as a to the power minus m divided by b to the power minus m. अब तो तुम्हें ये पता ही चल ही चुका है कि 1 by को मारो गोली, a to the power minus m means 1 by a to the power m. क्लियर है? सो जहाँ पे तुम्हें दिखाई, so means this one means what, a to the power of this means actually this one is a denominator part, this is not numerator part. दिख रहा है कि ये numerator part है, लेकिन actual में this one is denominator part. So we can write this one. अब इसे अगर लिखोगे तो means what, ये तो भाई b to the power m ही है, and ये क्या है, a to the power m. तो लिख सकते हैं ना कि b by a whole to the power m. ओके, b by a whole to the power m. So means अगर कोई ऐसा कोई मैथ दिखाई देगा जहाँ पे ये तुम फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन इज गिवन and the power is negative also, just write the reciprocal of the fraction और इसमें से ये नेगेटिव को हटाओ. क्या इट्स ओके ना? अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, যদি কোনো ফ্র্যাকশন দেওয়া থাকে আর তার পাওয়ার যদি নেগেটিভ হয়, ফ্র্যাকশন দেওয়া
पावर नेगेटिव बारे भाई फ्रैक्शन ना दिए डेसिमेलो दीते पारे फ्रैक्शन ना दिए डेसिमेलो दीते पारे तो যদি ডেসিমেল থাকে আর পাওয়ারটা যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে কি করবে তুমি ডেসিমেলকে ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করো করে रेसिप्रोकल यू नो मीन्स एट फर्स्ट मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक मान के चलो भाई भैया जी कि मान के चलो एक वन एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कहाँ लिखे यहाँ तो लिखे थे हाँ चलो ऐसे लिखते हैं कि 0.08 के टू दी पावर माइनस p लिखा हुआ है हाउ टू सॉल्व तो इसे हम लिखेंगे a बाई 100 होल के टू दी पावर माइनस p तो इसे लिख सकते हैं 100 बाई a टू दी पावर p ओके ना इट क्लियर ना सो दिस वन सो a ऐसे लिखो रे भैया क्लियर तो ऐसा कर दिया हुआ तुम ऐसे झप्पा झप्पा ऐसे लिख सकते हो ओके अरे हाँ या ना बोल ठीक है बहुत तो मैंने बोला लेकिन हुआ नहीं भाई एक लेक्चर आया फिर नहीं आया फिर रुक गए 1-2 महीने के लिए ऐसा होता रहता है क्या करें बोलो ऐसा हो जाता है हम करते नहीं हो जाता है क्या करें हम तो करना चाहते हैं लेकिन हो जाता क्या मतलब जो भी है कम टू द पॉइंट सो एक बार फिर से यहाँ पे दिमाग में घुसा ले अगर a पावर m भाई m मतलब कुछ भी नंबर m into a to the power n so it can be written as a to the power m plus n ये है नंबर 1 नंबर 2 a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n और डिवीजन मीन्स भाई क्या है कि ये ऐसे लिखना और a to the power m बाई a to the power n लिखना दोनों बराबर ही है बहुत सेम है भाई तो इसे हम लिख सकते हैं a to the power m माइनस n ठीक थर्ड वाले जो बहुत ही अच्छा है उसे हम लिखेंगे a to the power a b होल टू दी पावर m है तो हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं a टू दी पावर m into b टू दी पावर m ओके चौथे नंबर में चौथा या चौथी तो ऐसे हम लिख सकते हैं नंबर 4 इट वुड बी a बाई b होल टू दी पावर m इसे लिखो a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m ओके ना ओके ना नंबर 5 चलो जब प्लेस अलग अलग हो तो पढ़ाने का तरीका अलग अलग होना चाहिए सुनो नंबर 5 अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि a टू दी पावर भाई काम नहीं कर रहे क्या a टू दी पावर m माइनस लिखे तो इसे कैसे लिख सकते हैं 1 बाई a टू दी पावर m रे बाबा 6a टू दी पावर m 1 बाई तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a टू दी पावर माइनस m क्या सेम ना भाई देखो a टू दी पावर माइनस m तो इसे हम लिखे 1 बाई a टू दी पावर सो सिमिलरली 1 बाई a टू दी पावर कैन बी रिटन एज a टू दी पावर माइनस m ओके नंबर 7 क्या पता है अभी बताया ना कि a b होल टू दी पावर माइनस m कैन बी रिटन एज बोलो b बाई a होल टू दी पावर m ओके और तो करते करते और 1 2 3 आ ही जाएगा
तो वो तो एक सॉल्विंग मेथड है, हम तो मेथड यूज़ करके करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। वी हैव टू यूज़ द मेथड, क्लियर ना? वी हैव टू यूज़ द मेथड। मैंने जैसे तो पहले एक काम करो, नोट डाउन करो, नोट इट डाउन एट फास्ट। डन 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 डन। ओके, चलो एक एक करके हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम वैसे हवा एग्जाम्पल नहीं लेंगे भैया, एग्जाम्पल कुछ भी हो लेकिन करने का तरीका आना चाहिए। कैसे करें, कैसे करें भैया, कैसे करें भैया, कैसे करें भैया। चलो एक एग्जाम्पल हम यही से उठा लेते हैं। जो मान के चलो कि तुम्हें बताया गया कि सॉल्व करो, सॉल्यूशन फाइंड। कहां से सॉल्व करें भैया, बोलो कहां से करें, कहां से शुरू करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, चलो सिंप्लीफाई। एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, पहले लिखने दे। एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है जो है 8 टू दी पावर, क्या माइनस है भाई, 8 टू दी पावर माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर माइनस 2 और होल टू दी पावर हाफ। अब बोलो सॉल्व करने की बात क्या है, करो खुद से करो, पहले करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई देखो, अगर कोई मैथमेटिक्स ऐसे दिया हुआ है ना, एट फर्स्ट व्हाट इज योर एम, तुम क्वेश्चन को ध्यान से देखो और वहाँ पे दिए गए कोई नंबर को तुम किसी के क्यूब, स्क्वायर और टू दी पावर में लिख सकते हो, नहीं पहले लिखो। सो नाउ वी कैन राइट दिस वन। सो दिस 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, कि भाई 8 तो 2 टू दी पावर क्यूब है, और उसके पावर में लिखे माइनस 4/3। क्या लिखा है ना कि नहीं, बोलो। एंड दिस डिवीजन, डिवाइड जो ऐसे लिखा हुआ है 2 टू दी पावर माइनस 2। भाई एक स्टेप बाय स्टेप करो, हालांकि हम एक दो लाइन में कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए। अब बोल कि और एक फॉर्मूला यहाँ पे और एक लिख ले, क्या है बोलो, ऐड टू दी पावर m और उसका होल टू दी पावर में n है, तो हम लिख सकते हैं सो दिस कैन बी रिटन एज a टू दी पावर m into n है कि नहीं, बोलो। कोई नंबर उसके पावर में कोई दिया a टू दी पावर समथिंग और उसका होल टू दी पावर, देन उसे हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m into n। हाँ क्या ना, बोलो भैया। तो सिमिलरली 2 टू दी पावर, ये देखो 3 है, इंटू माइनस 4/3 ब्रैकेट रखो और डिवाइड जैसे लिखा है 2 टू दी पावर माइनस 2 और ए पे हाफ लगाओ। देखो तो अभी एक ही स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन ना स्टेप 1 बाय 1 पहले धीरे धीरे से सीखो, उसके बाद अगर सीखने के बाद तुम कर सकते हो तो कर देना। सो ये 3 कैंसिल, सो अब आगे क्या बोलो, 2 टू दी पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर माइनस 2 और उसका होल टू दी पावर हाफ। देखो जो इंडाइसेस है ना, वो करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। अगर हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो कोई दूसरा किसी दूसरे तरीके से कर ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन डू इट। একই রকম পদ্ধতিতে করতে পারবে, কেউ দিব্যি দেয়নি, কিন্তু তোমাকে অঙ্কটা করতে হবে ফাস্ট, কুইকলি, ঠিক। এবার তুমি কি স্টেপ ইউজ করবে টোটালি डिपेंड्स ऑन यू ओनली। हाँ सो अब देखो, ये वाले जो फॉर्मूला मैंने सिखाया तुमको अभी सिखाए थे ना, कि जब देखो दिस वन इज कैन बी रिटन एज, सो क्या भाई पूछ दे, ये दे लिख दे, पूछे ऐसे पूछे, पहले 2 लाइन पूछ लेते हैं, इरेज करते हैं इस 2 लाइन को, इस दोनों लाइन को पहले इरेज कर देते हैं। उसके बाद ये देखो 2 टू दी पावर माइनस 4, भाई देख इसे 2 टू दी पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर माइनस 2 और उसके होल टू दी पावर में है मेरा आधा। अब इसे मल्टीप्लाई करो फिर से, सो 2 टू दी पावर माइनस 4 इंटू हाफ
2 to the power minus 2 into half, so it would be 2 to the power minus 2. So 2 and 4 cancel ना भाई, देखो, so 2 to the power minus 2 divided by is 2 cancel, so 2 to the power minus 1. अब बोलो इसे कैसे लिख सकते हैं हम? अगर पावर कोई नेगेटिव फॉर्म में है हम इसे क्या लिखेंगे बोलो? a to the power minus m, b to the power minus n, so this can be written as, अगर इसे ऊपर शिफ्ट कर दोगे, इसे नीचे लेके आओगे, so 2 to the power 1 by 2 to the power 2, so it would be what? 1 by, चलो लिख ही देते हैं, 2 by 4, so it would be 1 by 2. So the total solution, अगर इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा भाई? हाफ. ओके और नॉट? सो पहले you have to write this one. What is the result? It would be half. धीरे धीरे और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कैसे करना है. ओ पहले लिखो, डन ना? देखो पहले करो ऐसे, और एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, करके बोलो. जब तक ये नोट डाउन करते दूसरा ऑर्डर देते हैं देखो कि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन है, ये दिख रहा है ना? हाँ भाई. सो ये 16 to the power 3 by 4 plus 2 into 1 by 2 to the power minus 1 into 3 to the power 0. भाई इसका वैल्यू फाइंड करो. इसे करने के बाद इसे करो, এটা করার পরে এটা করো, আর ডিফারেন্ট ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আমরা করব. তো এটা করে দেখো. চলো এটা মুছে দিয়ে এবার করার চেষ্টা করি. নিজে থেকে করতে হবে. আরে বাবা রে, कैसी गाड़ी है भैया. Now, how to solve this one? अरे भाई हो क्या रहा है तुम्हें? हाँ हो क्या गया इधर देखो. 20. Now this one 16 to the power 3 by 4. भाई बोलो 16. तो 16 को कैसे लिख सकते हो? देखो बहुत छोटे तुम क्लास, ये देखो जो इंडाइसेस है वो क्लास दिस चैप्टर इन क्लास 8, कभी क्लास 7 में भी पूछे जाते हैं एलिमेंट्री. सो ऑल आर द बेसिक ओनली. इफ़ यू नो द फार्मूलाज, कोई 7, 8, 10 ऐसा कोई मायना नहीं रखता है. अगर तुम 7 में ठीक से सीख जाओगे ना तो 8 में कर ही पाओगे, 9 में कर ही पाओगे, बाद में कर ही सकते हो. क्लियर ना? सो at first you have to remember the formulas. Okay. Second जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि different types of questions are there. How to apply, what to do, how to do, ये भाई तुमको सोचना है कैसे करेंगे. क्लियर ना? कैसे करोगे ये सब कुछ सोचना है. सोच के करेंगे. तो पहले इसे लो. और बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि भाई पावर कैसे लिखे दादा, पावर कैसे लिखें? तो पावर ऐसे लिखते हैं भाई. देखो अगर मान के चलोगे तुम्हारे पास 32 है, चलो इसे कैसे, तो एट फर्स्ट फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. फैक्टराइजेशन मीन्स व्हाट? उत्पादों के विश्लेषण करो. सो नाउ एट फर्स्ट दिस वन इज डिविजिबल बाय 2, सो 16 अगेन 2, 8, 2, 4, 2, 2. So 32 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 2 means 5 times 2 अगर लिखोगे तो then it would be 32. So 32 को हम लिख सकते हैं. So 32 can be written as 2 to the power 5. But it's clear or not? Similarly, so 16 can be written as, 16 को कैसे लिख सकते हो भाई बोलो? ये देखो. So 16 को हम लिख सकते हैं, this one is 16 can be written as 2 to the power 4. Okay, 2 to the power 4. So this 16 can be written as 2 to the power 4 and जो power 3 by 4 as it is
प्लस 2 इंटू 1/2 मीन्स व्हाट? अगर पावर नेगेटिव है तो भाई अभी तो बताया था ना, देखो ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन आ गया ना भाई, वरना फिर से करना पड़ता, वो फिर से रिवर्स जाओ फिर से करो, एक ही स्टेप में तुम कर सकते हो। सो यू कैन डू इट है ना इजीली। दिस वन देखो, यहाँ पे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 1/2 a by b होल टू द पावर माइनस m, इसकी जगह पे क्या लिखा है बोलो 1/2 टू द पावर माइनस 1। सो दिस कैन बी रिटन एज 2/1 टू द पावर 1। अरे यही तो बताया ना अभी, a by b होल टू द पावर माइनस m कैन बी रिटन एज b by a होल टू द पावर m। जस्ट यहाँ से इसका रेसिप्रोकल लिखो, यहाँ पे अगर देखो कि पावर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को नेक्स्ट में हटाओ और ऐसे लिखो। सो a by b होल टू द पावर माइनस m कैन बी रिटन एज b by a होल टू द पावर m। सिमिलरली 1/2 होल टू द पावर माइनस 1 can be written as 2/1 whole to the power 1. Okay, so now, so if okay, so 2 into 2 to the power 2/1 means what भाई? 2/1 means 2 only, 1 and 3 to the power 0। भाई अब बोलो और एक नोट डाउन करके रखो, anything to the power, anything to the power 0 का मान के चलो कि भैया ये घर है और घर के पावर में 0 है तो इसका वैल्यू है 1। ये एक पेड़ा है, पेड़े की पावर 0, so it will be 1। Anything to the power 0 is 1 only। कोई भी लेटर लिखो, कोई भी लेटर लिखो मतलब वो एप्लीकेशन वाला, कोई भी लेटर है बी सी डी, कोई भी नंबर पावर 0 means the value is 1, value is 1। So now this can be written as what? भाई again a to the power m to the power n, so it would be 4 into 3/4। भाई याद तो करना है ना, सीखना है कि करके। ये देखो यहीं पे ये फॉर्मूला यूज कर दी, a to the power m whole to the power n, it would be a to the power m into n। so ये देखो a to the power m की वैल्यू यहाँ पे 4 and whole to the power n means 3/4, so it would be m into n is 4 into 3/4। ओके चलो इसे हटाओ, प्लस 2 to the power 1 means 2, so it will be 4 and adding to the power 0 is 1 रे भैया 1, so it would be 1 लिखो, so it would be 2 cube plus 4, 2 cube means 8 plus 4, it would be 12। 2 cube is what? 8, 8 plus 4 it would be 12। ओके, सो ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो। चलो मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है भाई कि तुम थोड़ा तो वक्त लगेगा ही, हाँ धीरे धीरे से रे मना, तो धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे से। सो एंड इनिशियली एट फर्स्ट टेक सम टाइम एंड डू इट। ओके, ऐसे तो चलता रहता है। तो इस लेक्चर को देखने के लिए आप फॉरेन में रहते हैं, अब those who are not in India, those are outside from India, to listen the words we have to learn Hindi and as well as Bengali also। सबसे अच्छा तो संस्कृत सीखो। Now और एक छोटा सा देते, छोटा सा पहले छोटे करके सीखना है, छोटा एक और एक नियम तो हम छूट गए, वो लिखना जरूरी है कि भाई देखो अगर कोई भी नंबर है, मान के चल के x, क्लियर ना, उसमें ये रूट लगा हुआ है, सो मीन्स हाउ टू राइट दिस वन। सो रूट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, देखो इस बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा है, इसकी इस टोपी के अंदर, टोपी पहनाना बहुत आसान है भाई। टोपी अभी दुनिया में जो कोई किसी को टोपी पहना देते हैं भाई, देखो क्लियर है। तो ये है टोपी,
कोई भी अरे कोई हर कोई किसी को टोपी पहना रहे हैं सब। एक्स, अब ये टोपी पहना दिए, तब इसे क्या कैसे लिखेंगे? वी कैन राइट दिस एक्स टू दी पावर हाफ। क्या लिखना है? एक पहले यूज ब्रैकेट यूज करना, देन एक्स टू दी पावर हाफ। और अगर इस टोपी के अंदर कुछ भी लिखा है, मान के चलिए कि ये जिंदा आदमी बैठा है, यही तो पहनाएगा टोपी, यही तो पहनाएगा टोपी। तो कैसे लिखोगे? एक्स के पावर में 1 बाई इस जिंदा लाश को डाल दे। इसे डाल दिए होंगे पक्का। अब चलो कैसे करें, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो मान के चलो कि रूट 5, सो दिस कैन बी रिटन एज 5 टू दी पावर हाफ। और एक एग्जांपल लिखिए, इसके अंदर लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 5, सो मीन्स 5 टू दी पावर 1 बाई 3। ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, और ऐसे ये फॉर्म है लिखने। तो इसके ऊपर बेस करके चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और 4-5 क्वेश्चन हम तुमको होमवर्क के तौर पे दे देंगे, तुम करो एक एक करके, ठीक है ना? ओके चलो पहले एक काम करते, ये वाला करते। पहले वाला कौन है? चलो इसलिए एक क्वेश्चन 2 टू दी पावर, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो 2 स्क्वायर और इसके रूट में है, और यहाँ पे टोपी के अंदर 4 और यहाँ पे 256 है भाई, क्लियर ना? अब नीचे क्या है देखो, टोपी पहनाया, फिर से 3 है, 64 ये दिया हुआ है, और इसके साइड में माइनस में 1/2 और टू दी पावर -2। ऐसे नहीं, ऐसे। सो हाउ टू सॉल्व, चलो करके दिखाओ, डू इट फास्ट। ओके चलो। सो भाई देखो, पहले वाले टर्म को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे जो हमने अभी बताया ना कि भाई x, उसके रूट में यहाँ पे कोई नंबर है, कोई मान के चलो कुछ भी है, a है, स्मॉल, सो दिस कैन बी रिटन एज a टू दी पावर 1/a। ओके, सो सिमिलरली अगर इसी फॉर्मूला को हम यूज करें तो कैसे लिख सकते हैं बोलो? इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, कैसे एकदम। सो इट कैन बी रिटन एज 2 टू दी 2 स्क्वायर। अब लिखा है ना देखो, और पावर में क्या है बोलो? अगर कुछ भी नहीं लिखा होते हैं पे तो क्या लिखते हैं? अभी तो पता है, कुछ ना होता तो ये ना होते। ओके, देन दिस वन 256 भाई बोलो फिर से। 256 को हम पहले ऐसे लिखेंगे 1/4 की पावर, और इसे बोलो 64 को कैसे लिखेंगे? 64 और 1/3 की पावर हो गए। और ये जो बचा हुआ इंसान, अब बोलो भाई यही पे तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि नहीं? देखो 1/2 टू दी पावर -2, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि भैया जी हम तुमको 2/1 टू दी पावर 2 लिख देंगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लिख सकते हैं। सो लिख दी। अब देखो, सो अगेन बोलो, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे? यहीं पे हम लगाएंगे जो फॉर्मूला वो है। अब देखो तुम एक काम करो, हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं कि तुम यही फॉर्मूला यूज करके करते जाओ। भाई देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाओ, a टू दी पावर m होल टू दी पावर n। इसे हम तुम इस जगह पे ये फॉर्मूला लगाओ, a टू दी पावर m इंटू n लगाओ। इस फॉर्मूला को तुम कैसे करोगे? यहीं पे इसको तुम किसी के पावर में लिख दो, उसके होल टू दी पावर में ऐसे लिखो। सेम इसे भी किसी के पावर में लिखो। सब देखो, अगर इसी स्टेप में तुम ये फॉर्मूला लगाए, भाई करते रहो, 1-2 मिनट में ये खत्म हो चुका है भाई। रुको, करते जाओ करके बोलो भैया, करो करके देखो। हाल नहीं छोड़ना है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया तुम्हें कोसते रहे, कोई तुम्हें कुछ भी कहे,
हाल छोड़ना नहीं। ओके, तो इंक भर चुका। अब ये कितना फर्क फर्क करा भाई। सो इसका तो काम हो गए। अब देखो, अब बोलो कैसे करना है, ध्यान से बोलो। अगर इंक नहीं भरेंगे तो लिखेंगे कैसे भाई, दिखाई नहीं देगा ना। देखो, सो दिस वन कैन बी रिटन एज 2 to the power 2 into 1/2। भैया करेक्ट है ना? दिखाई नहीं दे रहा है, पहुंच के लिखते तो ऊपर लिख देते हैं, चलो थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। दिखाई दे रहा है ना? सो ये कैसे लिखे, 2 to the power 2 into 1/2। देखो, a to the power m whole to the power n a to the power m into n। अब into भाई 2 to the power 56, इसे कैसे लिखे बोलो? पहले फैक्टराइज करो, इसे फैक्टराइज करो। सो इसे क्या लिखते हैं, ये देखो तुम एक काम करोगे भाई, 4 बार 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 into 4 into 4 into 4 4 into 4 इसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे करो 4 into 4 16 16 4 64 64 into 4। भाई क्या करना है, मल्टीप्लाई करो। पागल की तरह मत करो, कैसे करना है, 4 into 4 16 रे बाबा, 4 into 4 16 रे बाबा, 16 16 256 रे। So means it would be 4 to the power 4। भाई देखो 256 को हम ऐसे लिखते हैं, 4 to the power 4। अगर पसंद ना आ रहे तो तुम ऐसे कर सकते हो, 4 into 4 16 into 4 64 into 4 4 4 16 6 1 24 25। क्लियर ना? 256। सो 256 को हम लिख सकते हैं 4 to the power 4 एंड यहाँ पे 1/4 लिख दी। लिखे कि नहीं भाई, बोल ना। और इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 64 को कैसे लिखे भाई, 4 into 4 into 4। सो इसे क्या लिखते हैं, 4 to the power 3 और होल to the power 1/3। ओके ना? चलो इस लाइन को हटा देते हैं। पहले देखो क्वेश्चन लिखे हो ना भाई, करना है क्या करके, वरना तो वरना ही हो जाएगा। तो करते रहो, एक एक करके करते रहो करते रहो करते रहो। सो दिस वन कैन बी रिटन एज, देखो भाई ये तो 2 है, दिस वन इज 2 into 1/2, 2 2 cancel, so it will be 2 into, can is also 4 to the power 4 into 1/4। So 4 into 1/4 ऐसे क्या लिखोगे, so it will be 4। It's okay। अरे भाई this one देखो रे भैया, this can be written as what, 4 into 1/4 4 to the power, अरे 4 4 कैंसिल हो गए तो ये लिखोगे 4 ही रहेगा ना भाई, 4 to the power 1 means 4 only। So it will be 4 divided by, अब इसे कहो सिमिलरली, इसे मल्टीप्लाई करो 3 3 तो कैंसिल, so it will be 4। और यहाँ से 4 4 कैंसिल, so it will be 2। तो रिजल्ट क्या है बोलो भाई, 2। ओके, क्लियर ना? सो अगेन दोस आर द बेसिक एग्जांपल्स। देन एक और 1 2 3 कर लेते हैं। रुक जाओ 1 2 मिनट रुक जाओ। तो है ना, तब इसे पूछ देते हैं। चलो एक ऐसे क्वेश्चन, तो ये तो हो गए, तो तुम कर सकते हो, एक एक करके करना है, या टू डू इट। बट क्या करना है भाई, तुम अगर प्रैक्टिस करते हो बेशी করে প্র্যাকটিস যদি না করো তাহলে করার সময় তো মনে হবে হ্যাঁ আরে কি সোজা, বহু সোজাই তো। ওই এক্সাম্পলটা দেখেছিলাম, আর তারপরে এখন হয়ে যাবে, থাক। এরকম করলে হবে না, তোমাদের খাতায় করতে হবে, যে তুমি যে বই ইউজ করো। ক্লিয়ার না? অথররা বই পাবলিশ করে সেটা নিশ্চয়ই অ্যাকসেপ্টেবল, অবশ্যই গুড কোয়ালিটির বুকস আছে। তো যে কোনো বইয়ের তুমি সব করবে কি, দেখো প্রসেস সবাই প্রথমে আগে একটু অল্প স্বল্প শিখে নিই, সরাসরি চলে গেলো এক্সারসাইজ পার্টে করতে, কিন্তু একদম ব্যাপারটা ঠিক না।
তুমি এক্সাম্পলস মানে সলভ পার্টে যা যা দেওয়া খাতা নাও, খাতায় একটা একটা করে কোশ্চেন লেখো, তুমি তোমার মতো সলভ করো, দেখো রেজাল্ট সেম কিনা। যদি সেম হয় তাহলে বাহ তুমি শিখে গেছো, আর যদি সেম না হয় তাহলে তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো যে কী হলো। ওকে, তাহলে চলো আরেকটা এক্সাম্পল আমরা নিই। সো লেটস टेक अनदर एग्जाम्पल। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, चलो कोई अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, अलग टाइप का। पहले ये भाई 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 पहले ये याद रखो, एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या है? 1। सो हम 1 को कैसे लिख सकते हैं? कुछ भी टू दी पावर 0 लिख दें तो 1। चलो अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो ऐसे तो किया हमने, ये सब सीख लिया, और भी थोड़ा 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 करके बहुत सारे प्रूव है, शो दैट, ऐसे वैसे करते रहेंगे। लेकिन एक दो और, अब ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो तुम परेशान हो जाओ। क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या दादा क्या पढ़ा रहे हो आप? हाँ क्या पढ़ा रहे हैं आप? कि 40 मिनट्स 45 मिनट्स नियर 1 घंटा बर्बाद कर दी। हाँ देखो बर्बाद करते रहो, वैसे तो तुम मोबाइल यूज़ करके बर्बाद ही हो रहे हो, तो थोड़ा ये देख लो और भी बर्बाद हो जाओगे। सुनो, ये थोड़ा अलग टाइप का बर्बादी है। सुनो अनदर एग्जांपल, भाई देखो ये लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, सॉल्व द following equation। क्लियर ना? सो बेटा नाउ सॉल्व करना मीनिंग, व्हाट इज द सॉल्व, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्व? सॉल्व मीन्स व्हाट? टू फाइंड द अननोन क्वांटिटी। अगर कोई भी इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करने को कहे कि उसका टारगेट क्या है भाई, यू हैव टू फाइंड द अननोन क्वांटिटी। तुम्हें सॉल्व करने को कहे मतलब अननोन क्वांटिटी को फाइंड करना ही करना है। ओके और नॉट? क्लियर ना? तो सॉल्व करने का मतलब क्या है? जो उस इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटी है उसे फाइंड करना है। एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा हो तो एक से ज़्यादा इक्वेशन चाहिए, अगर एक ही है तो एक ही इक्वेशन से तुम काम चला लोगे। सो वन एग्जाम्पल नहीं भाई, ये सॉल्व करो लोग। मान के चलते तुम एग्जाम्पल एक छोटा सा, चल मान के चलो 5 टू दी पावर 2x plus 1, क्लियर ना? एंड दिस इज इक्वल गिवन 1। चलो एंड दे आस्क्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये दिया हुआ है, देखो पहले करने का तरीका समझ लो। मतलब अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें पूछ ले तो तुम कैसे कर सकते हो, है ना? ये तो मतलब भाई थोड़ी ना हम क्या करें, कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन सीख रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन सीख रहे हैं हम। वी आर लर्निंग, वी आर गोइंग थ्रू द लर्निंग प्रसेस অনলি। আরে আমরা শিখেই তো যাচ্ছি, শিখেছি, এবার অ্যাপ্লাই করবো কী করে? যদি কোনো সময় এরকম একটা তুমি পেলে যে এখান থেকে বলো হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এক্স, স্ট্রেন এক্স দিস ওয়ান ইজ गिवन इन पावर, देन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो नाउ बेटा हमने अभी भी सीखा है ना, देखो एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1। सो 1 को हम किसी की पावर के 0 में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस वन 5 टू दी पावर 2x प्लस 1, इट वुड बी 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई देखो 5 टू दी पावर 0। क्यों लिखे? अगर मान के चलो यहाँ पे 5 ना देखिए 7 दिया हुआ रहता तो हम इसे 7 की टू दी पावर में 0 कर देते, यहीं पे 7 कर देते। समझ में आ गया रहेगा नहीं भाई? बोल। और यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो मीन्स क्या? अगर मान के चलो कि 5 नहीं है, यहाँ पे a दिया हुआ है तो सिर्फ तुम तब क्या करते, यहाँ पे a लिखते और इसको a टू दी पावर के 0 में कर देते, हाँ कि नहीं? अब करने का क्या फायदा क्या है भाई? फायदा है देखो कि LH में, ये तो LHS वाला पार्ट है ना, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे जो RHS है, RHS राइट हैंड वाला साइड। सो ये देखो इधर लेफ्ट हैंड में दिख रहा है कि a के टू दी पावर 2x plus 1, the value of a to the power 2x plus 1 is the same as a to the power 0। समझ में आया कि नहीं भाई?
कि बोल रहे हैं कि ए टू दी पावर 2x प्लस 1 की जो वैल्यू है वही वैल्यू तुम्हें मिल सकता है ए टू दी पावर 0 करने से। तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई इसके पावर मीन्स यहाँ पे बेसिस आर सेम, सो ये पावर से ये इसका जो वैल्यू है इसका जो वैल्यू से, सो तब हम कह सकते हैं बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। अब क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2x प्लस 1 इज इक्वल 0, सो 2x इक्वल माइनस 1। अरे भैया if we shift plus 1 इधर तो it would be minus 1, so now x equal minus 1 by 2, so it would be minus 1 by 2, so x की वैल्यू minus 1 by 2 ऐसे पता करना है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। चलो एक অন্য ধরনের একটা কোশ্চেনে যেখানে একটু অ্যাপ্লিকেশন পার্ট থাকবে। ওকে চলো তো পরের একটা কোশ্চেন যেটা, চলো মুছে দেই, এটা লিখে নাও। हो गए भाई, देखो भाई बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है ना बहुत ठंड है भाई। अब देखो, हे भगवान, আরে দাদা কি বলছেন, বাইরে কি ঠান্ডা আছে? বাইরে তো খুব ঠান্ডা আছে স্যার। चलो और एक दूसरा नंबर 2, 3/5 इसके रूट में है ये और होल टू दी पावर x प्लस 1 इज इक्वल गिवन 125/27। चलो इसे करके दिखाओ, करो এটা, যাও করো ডু ইট ফাস্ট, তাড়াতাড়ি করে দেখাও, তাড়াতাড়ি করো। কিভাবে হবে বলো, তাড়াতাড়ি করতে হবে এটা। কি করে করো দেখো, ওই সেম কনসেপ্ট এখানে দেখো, ফাইন্ড সলভ দ্য ফলোইং মিন্স व्हाट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x unknown quantity, which one is unknown quantity, which one is unknown quantity, x is unknown quantity, so you have to find the value of x only। so 3/5 रूट, सो दिस कैन बी रिटन एज, बेटा देखो ऐसे लिखे ना अभी, देखो याद है ना वो जो मैंने अभी बताया कि देखो अगर किसी के रूट में कुछ भी लिखा है तो उसे हम रूट हटा के लिख सकते हैं वो पेड़ टू द पावर हाफ, मींस व्हाट, इज व्हेन t is given by anything, so it would be half, so 3/5 can be written as 3/5 to the power half, और इसके होल टू द पावर में जो था वो था। अब इसे कैसे लिखते हैं, इसी को भी किसी की पावर में लिखना है, सो 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब एंड 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब। ओके भाई समझ में आ गया। फिर से हम दोबारा इस लाइन को नहीं लिखेंगे, ये लिखा है ना तो पहले नोट डाउन करो, इसे लिखो, देन सेकेंड लाइन में क्या करना है, इसी लाइन को दोहराना है, ये खत्म, नाउ थर्ड लाइन, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, होल टू द पावर 3, डन। अब देखो, सो दिस वन 3/5 टू दी पावर, इसे क्या लिख सकते हैं बोलो, x प्लस 1/2, अरे हाफ इंटू, भाई देखो हाफ इंटू x प्लस 1, सो इट वुड बी व्हाट, x प्लस 1/2 ओनली। अरे हाँ या ना में जवाब दे भाई, हाँ। सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, सो इट वुड बी व्हाट, जैसे लिखा है 5/3 वैसे लिखो, 5/3 होल टू दी पावर 3, ओके ना। अब देखो, अब मजा आने वाला है भाई, इधर दिख रहा है तो मजा इधर आ जाए तो अच्छा है, मजा आने वाला है, मतलब वही कैलकुलेशन। देखो भाई इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो, ये फार्मूला 7 वाले फार्मूला, अरे हाय 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 7 वाले फार्मूला, a to the power a/b whole to the power minus m कैन बी रिटन एज क्या, वही बोल इसे हम कैसे लिख सकते हैं, फिर से बोलो दादा, b/a होल टू दी पावर m लिख दो, a/b होल टू दी पावर माइनस m कैन बी रिटन एज b/a होल टू दी पावर m,
हाँ ना। अब ऑपोजिट में बोलोगे भाई देखो, जिसे तुम b बाई ए होल टू द पावर m है उसे हम ऐसे लिख सकते कि नहीं बोलो, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, जरूर लिख सकते हैं दादा। सो b बाई ए होल टू द पावर m को हम लिख सकते हैं a बाई b होल टू द पावर माइनस m। तो अब इसे यहीं पे अप्लाई करते हैं, यहीं पे लिखा गया b बाई ए होल टू द पावर m, b बाई ए होल टू द पावर m, तब इसे क्या लिखेंगे a बाई b। सो ऐसे फिर से समझना है भाई, धीरे धीरे समझो। अगर देखो a बाई बी होल टू द पावर माइनस m को लिख सकते b बाई होल टू द पावर m। तो अगर किसी भी फॉर्म में ऐसे दिखाई दे b बाई a मींस समथिंग डिवाइडेड बाय एनीथिंग होल टू द पावर पॉजिटिव, सो इसे हम क्या करते हैं, इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करके पावर नेगेटिव कर सकते हैं। सो वैसे ही करना है। सो 3/5 होल टू द पावर माइनस 3, अब ये 3/5 होल टू द पावर x प्लस 1/2, हाँ या ना। अब तुम बोल सकते हो कि दादा क्यों किए ये सब, क्यों किए दादा? तो इसीलिए दादा कि ये देखो 3/5 ये भी 5/3 थे ना भाई, এখানে तो 3/5 এখানে 5/3। सो देयर इज द वी हैव टू कंपेयर द पावर। सो इफ द बेसेस आर सेम देन वी कैन कंपेयर इट। अगर भाई बेस अलग हो जाए तो कंपेयर हम कैसे करें? तो बेस को सेम रखने के लिए हमने ये स्टेप यहाँ पे इस्तेमाल कर ये वाला स्टेप। तो याद रखना चाहिए भाई, ये जो दिया हुआ है ना, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा जी का वरदान है ये। इसे तुम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो अगर इसी फॉर्म में है तो स्टेप को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि तुम्हें ये पता है ये खुद में ही 2-3 स्टेप है, तो अगर तुम ऐसे यूज कर दोगे 2-3 स्टेप ऐसे ही कम होने वाला है। क्या कर रहे थे ठंडे भाई। सो नाउ इफ यू कंपेयर दिस वन, सो we can write बेटा देखो ना, तुम जो भी तुम्हें कोई हो सकते जो तुम्हें गाइड कर रहा है, जहाँ पे तुम पढ़ते हो, लेकिन वो सब ठीक है। जब तुम्हें वक्त मिल जाए तो तुम ये भी देख लो, हाँ तुम कहीं पे पढ़ रहे हो, तुम्हें गाइड करने के दूसरा कोई है, नो प्रॉब्लम, नो इशू भाई। लेकिन तुम ये भी देख सकते 1-8 घंटा वो क्या करे सोशल मीडिया में वक्त, वो ऐसे अपने वैल्यूएबल टाइम को इन्वेस्ट ना करके, सॉरी हाँ इन्वेस्ट ही कर रहा हूँ, बेसिकली वो इन्वेस्ट नहीं वेस्ट हो रहा है। तो उस टाइम को तुम वेस्ट ना करके अगर 1-2 ऐसे लेक्चर, मुझे मेरा वाला ये देखना है ऐसा कोई बात नहीं है, वो तुम्हारी मर्जी के, तुम पसंद करो, तुम्हें अगर समझ में आ रहा है, इसमें पसंद ना पसंद की कोई बात नहीं। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम देखो, अगर समझ में ना आ रहा है तो जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो देखो। मीन्स तुम खुद के बारे में सोचो, तुम अपने आप के बारे में सोचो पहले, বুঝলে? তো এদিকে দেখো, তো এখান থেকে আমি কি লিখতে পারি বলো, একই। সো এগেইন we have to compare, so comparing both side we can write what, ভাই বলো compare। তো এটা এতটুকু তোমরা বুঝতেই পারবে যে এখানে এর দাদা এখানে 3/5 এখানেও 3/5, তো বোথ সাইড তো বেসিস আর সেম, তাহলে পাওয়ারগুলোকে এই 3/5 টু দি পাওয়ার x প্লাস 1/2 করে যাওয়া হয় 3/5 টু দি পাওয়ার -3 করে দিলে একই ভ্যালু পাচ্ছি। তার মানে আমরা বলতেই পারি এখান থেকে যে x প্লাস 1/2 এটা আর -3 আর সেম। তুমি একই জিনিসের কোনো একটা নাম্বার নিয়েছো, তার পাওয়ারে কোনো একটা, দেখো আমি আরও একটা এক্সাম্পল, এটা তো আমরা করবোই, তাই একটা জিনিস আমি একটা ছবি এঁকেছি এইখানে, ये मेरा चुनी भैया, और चुनी भैया के ऊपर x प्लस वाई लिखने से जो आता है वो 5 के ऊपर, ओके, वो क्या करे भाई, चुनी भैया के ऊपर चुनी भैया कर देता, अभी तो अलग कंसेप्ट में चले ही जा रहे थे, चुनी भैया के ऊपर 5 लिखने में वो आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि चुनी भैया के ऊपर x प्लस वाई लिखने में जो आ रहा है,
चुनी भैया के ऊपर 5 लिखने में वही आ रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो x प्लस वाई के टर्म में लिखा है वो 5 के अलावा और कुछ नहीं। सो इसलिए वी कैन कंपेयर एंड वी कैन राइट दिस। सो कंपेयरिंग बोथ साइड वी कैन राइट। भाई देखो ये पे कंपेयर कर देते हैं तो दिस वन इज इक्वल दैट वन। क्लियर ना? समझना है इसलिए हम बोल रहे हैं, वरना तो करने से यार कितना वक्त लगेगा, 1-2 मिनट में तो हो ही जाएगा। सो इट वुड बी ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो 1 है। सो x प्लस 1 इफ यू मल्टीप्लाई 2 into -3 2 into -6 सो x इक्वल -6 और इस 1 को इधर आओ -1 सो x इक्वल -7 x इक्वल -7। तो करना क्या है भाई, इतने सारे इस जो सारे से बहुत सारे जो हमने वो फार्मूलेज लिखे थे उनका सब एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा है। जो सारे प्रॉब्लम हमने किए, जो एग्जाम्पल्स हमने सिलेक्ट किए उनमें से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम से अगले थोड़े थोड़े करके एक एक करते रहेंगे। लेकिन तुम क्या करोगे, তোমাদের এটা করতে হবে, তোমাদের কাছে যার কাছে যাই বই থাকুক না কেন এটা শুধুমাত্র ক্লাস 9-10 তুমি বলবে না, 8 ক্লাস স্ট্যান্ডার্ডেরও জন্য যা 7 আরে ভাই যা তুমি 9-এ শিখবে সেটা 7-এ শিখতে ক্ষতি কি, অ্যাডভান্সে শিখে রাখো ভাই। এখন টাইম খুব শর্ট হয়ে গেছে, তোমার খুব তাড়াতাড়ি শিখতে হবে। তো যা বই থাকুক না কেন সেখান থেকে তুমি এগুলো করতে শুরু করো। কিছু প্রুফ পার্ট, সো দ্যাট এই পার্টগুলো আসে সেটা আমরা এক এক করে সলভ করতে থাকবো। ঠিক আছে, বইয়ের থেকে প্রবলেম খোঁজো আর করতে থাকো। অ্যান্ড জয় হিন্দ, থ্যাংক ইউ সো মাচ।